Namaskar, welcome to my channel Knowledge Booster. This is Ruchika Gehlot. I'm back with my new video of resource management and consumer needs on the topic motivating factors. If you have been through my previous video, there I had completed basics of management as well as approaches and a starting of motivating factors, and in today's video I'll be just covering motivating factors. And please do watch my video till the end so that if you have any query, any suggestions, you can just drop me down either in the comment box or you can just mail me out with the email id, that is gehlot.ruchikakb@gmail.com. So do watch my video, complete video, and do ask your queries and feel free to ask. Sorry for this inconvenience, for this delaying due to some family issues. I am unable to upload it on time. So hope so it will come soon with the regular hope this regularity will come soon. Okay, let's begin with the topic. At the end of this video, I'll be just discussing some previous year's questions related to the topic motivating factors, and please like, share and subscribe my video so that other students like you can also get in touch with my videos, and they can also get notes for this topic as well as notes for the NET exam. They can also prepare for the same. मोटिवेटिंग फैक्टर्स तीन टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है वैल्यू, गोल एंड स्टैंडर्ड. वैल्यू की डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था. अब मैं आगे डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ वैल्यूज. पार्कर क्लासिफाइड द टाइप्स ऑफ वैल्यूज एंड देयर आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इंटरनल, सेकंड एक्सटर्नल. इंटरनल जो आप में इंटरनली प्रेजेंट होता है, नेचुरल. ठीक है, नेचुरल क्वालिटीज जो आप में प्रेजेंट होती हैं ऑलरेडी. ठीक है, तो एग्जाम्पल इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी, एल्ट्रुइज्म, क्रिएटिविटी. एल्ट्रुइज्म इज द फैक्ट ऑफ केयरिंग अबाउट द नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ द पर्सन. एक्सटर्नल वैल्यूज जो आप एक्वायर करते हो थ्रू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, थ्रू एक्सटर्नल प्रेशर, जो आप अपने बॉडी में इनकॉर्पोरेट करते हो, जो वैल्यूज आप अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट करते हो, दैट आर एक्सटर्नल वैल्यूज. Example, social and economic values, way of life, security, prestige, association, etc. Prestige is the respect and admiration that people feel for a person. Then comes Lindsay classification of value. इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इन टर्म्स के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है. तो you just need to know the meaning of these terms. Then first is theoretical value, that means related to theory, related to facts, scientific research. Economic value related to money, economy, ठीक है, savings, etc. Aesthetic related to beauty. Social value related to social services, service for the betterment of the society, like for socially. Political value for leadership related to political parties, political aspects. Religious related to God, culture, rituals, etc. देन कम्स सेकेंड इज गोल. गोल क्या होता है? गोल हम खुद अपने दिमाग में, अगर मैं बात करूँ तो हम गोल सेट करते हैं किसी भी चीज को अचीव करने का. ठीक है, अगर आपको सक्सेस पानी है तो आप यू जस्ट सेट अ गोल कि भी मेरा ये गोल है, और देन यू वर्क फॉर इट, एंड देन अगर आपको वो गोल अचीव हो जाता है, देन यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. तो गोल इज अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. येस, इट इज अ प्री डिटरमाइंड. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम डिजायर्स, ह्यूमन वैल्यूज, चेंजिंग एनवायरमेंट, थॉट्स, एक्सेट्रा. ठीक है, and goals are formed to make life better and for the personality development. and goal क्या होता है? जैसे एक गोल कंप्लीट होता है, हम दूसरा गोल सेट करते हैं, एंड ये चीज साइकिल कंटिन्यू होती रहती है. एंड वंस गोल इज अचीव्ड इन पर्सनस लाइफ, देन अगेन वो नया गोल सेट हो जाता है, एंड देन अगेन दिस साइकिल कंटिन्यूज. तो गोल सेट करने का कोई एंड नहीं है, एंड उसको अचीव करने का कोई एंड नहीं है. Characteristics of goals. Formation of goals occur automatically. Goal achievement is a continuous process. Yes. Goals are clear, changeable based on times and values. Goals are individualistic and for a group. Goals should be practical and factual and should be achieved on time. Okay, and they are affected by the society. Like example, prevalent tradition and belief of a society affect the goal setting of the family. Yes. If an individual living in a society pursues a bad behavior, it has a bearing on the society. So goal does have an effect. Goals are affected by the society. Types of goals.
लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड मीन एंड गोल्स. लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होता है? गोल्स विच टेक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू गेट फुलफिल्ड. ठीक है, दे आर मोर स्टेबल एंड अचीव्ड स्लोली. फॉर एग्जाम्पल फैमिली हेल्थ, हायर एजुकेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली, दे आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म गोल्स, जिनको थोड़ा लंबा टाइम लगता है पूरा होने में. शॉर्ट टर्म गोल्स जो डेली बेसिस पे होते हैं. शॉर्ट टर्म गोल्स आर नेसेसरी फॉर डेली रूटीन, जो आप डेली बेसिस पे सेट करते हैं देन आप उसको पूरा कर लेते हैं. एंड सम शॉर्ट टर्म गोल्स आर अचीव टू सप्लीमेंट द लॉन्ग टर्म गोल्स. एंड ये भी होता है कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट शॉर्ट टर्म गोल्स शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन डेली रूटीन so that long term goals can be achieved successfully. For example, long term goals of higher education can be achieved when short term goals of completing school education then college education is achieved. तो short term goals से ही आप अपने long term goals को पूरा कर सकते हैं. मीन एंड गोल्स, दीज टाइप्स ऑफ गोल्स आर लिमिटेड टू द रिसोर्सेज. अगर रिसोर्सेज खत्म हो गए तो ये गोल्स भी खत्म हो जाएंगे. ओके, एंड they are neither short term not long term, like purchasing of some article, some payment of bills and all small items. Then third comes the standard. And goal must be important for the betterment of the family as well as the members of the family, and individualistic goals as well as the goals of the family should be achieved. ऐसा नहीं है कि भाई खुद के कोई goals नहीं है. No, फैमिली के भी गोल्स होने चाहिए प्लस एज वेल एज फैमिली मेंबर्स के खुद के भी गोल्स होने चाहिए, एंड वो सब अचीव होना चाहिए. तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई एक वेल सेटल्ड फैमिली एंड वेल सेटल्ड गोल्स आर established. Then comes the standard. They are based on the resources, values and goals, and they specify a managerial process. And the values and goals are based on hypothetical facts, but standards are stable, and one can make out the person's character, behavior, culture on the basis of the standards. And it is an internal measure and a measure of faith which gives satisfaction and needs to be that is to be fulfilled, and it may be acceptable or unacceptable. And factors affecting standards, like affected by values. Factors affecting standards, like how standards are affected by values, because if I'll say, like based on the interest, attitudes and experiences, human values and philosophies of life are formulated. So goals are set according to they are set for the according to these. So goals standards, they are also affected by values. अगर किसी के मान लो वैल्यूज थोड़े ऐसे टाइप्स के होंगे कि भाई थोड़ा धार्मिक है, तो उसके स्टैंडर्ड भी उस हिसाब से होंगे. ठीक है, लाइक वो अगर मैं आपको इसकी बात करूं तो कोई साधु संत है, ठीक है, तो अब वो धार्मिक है तो उसके कपड़े भी साधु संत जैसे होंगे, एंड यू कैन डिटरमाइन कि हाँ भी वो साधु संत है. तो दे आर अफेक्टेड बाय द वैल्यूज. कॉपरेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स, अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है या आपको अपनी फैमिली का एक कोई गोल अचीव करना है तो सबका कोऑपरेशन भी जरूरी होता है. इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, यस, कल्चर, टाइम, स्टैंडर्ड्स, ये सब भी अफेक्ट करता है सोसाइटी के इफेक्ट को. जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारे स्टैंडर्ड्स अबव हो जाते हैं थोड़ा लेवल से तो हम लोग हाई स्टैंडर्ड लोग कहलाते हैं. ये अगर हमारे स्टैंडर्ड्स लोअर होते हैं तो हम लो स्टैंडर्ड लोग कहलाते हैं. तो दे आर अफेक्टेड बाय द सोसाइटी. इट डिपेंड्स कि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है. एंड ओरिजिन ऑफ स्टैंडर्ड्स फ्रॉम आर कल्चर, येस, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम आर कल्चर्स एंड देन दे आर मैनिपुलेटेड इन सम और द अदर फॉर्म. क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है. एंड ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ट्रेडिशनल मीन्स ट्रेडिशनली, बहुत पुराना, कल्चरली. तो ये क्या है? स्टेबल है, दे आर सोशली एक्सेप्टेबल एंड दे आर रिजिड. ठीक है, एंड दे आर अनफ्लेक्सिबल. ट्रेडिशनल से बात आता है आपका ट्रेडिशनल, पुराने. तो पुराने क्या होता है? रिजिड भी हैं, स्टेबल भी हैं एंड दे आर नॉन फ्लेक्सिबल. लेकिन ट्रांजिशनल क्या होता है? आप खुद ही देख लो, ट्रांजिशन हो रहा है तो मतलब जो जितने भी कल्चर्स हैं वो फ्लेक्सिबल भी हैं, चेंज भी हो रहे हैं, ट्रांजिशन हो रहे हैं, दैट मीन्स चेंज भी हो रहे हैं, एंड दे कैन बी मोल्डेड इन एनी फॉर्म. तो इसमें क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द स्टैंडर्ड्स आर स्टेबल, रिजिड एंड अनफ्लेक्सिबल. तो इसका आंसर है ट्रेडिशनल. थैंक यू. I hope you liked my this short lecture
on this topic, on today's topic. Do give your suggestions and do ask your queries. And जो इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो है कि who gave the human classification, that is who gave the classification on human values. The answer is Parker. And second question इसमें ये आ रखा है कि which of the standards are rigid and inflexible, तो that is traditional standards. एंड अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो इंटरनल एक्सटर्नल पे आया है, वो भी ऐसा सच नहीं आया हुआ, हाँ, लेकिन जो ये एस्थेटिक वैल्यूज़ एंड थियोरेटिकल वैल्यूज़ है ये एक आपको एज अ सब ऑप्शंस में दिख जाएंगे. सो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ एस्थेटिक एंड ऑल. ठीक है. सो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आ गया होगा. एंड ये 2 क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर्स में से आए थे. सो डू गिव योर सजेशंस, डू आस्क योर क्वेरीज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. And thank you.